Hello friends, today we are continuing our chapter number 4 supply analysis. In this lecture we will learn new points, determinants of supply, law of supply and assumptions of supply. First point is determinants of supply. Determinants means what are the factor which are helpful of and what are the factor matter supply of a commodity in the market. What are the factor affecting the supply of goods in the market? There are various factors are influencing the supply of commodity in the market. Very first factor of important factor is price of commodity. Price is an important factor influencing the supply of commodity. If price of commodity is a reasonable and price of commodity within the reach and price of commodity or price of commodity set in the market, then the producer supply the goods in the market. If the price below, the seller will not supply more quantity. Means जो price है वो price is the it is a very important factor for influencing on the supply, because price is an important factor. More quantity are supplied at a higher price and less quantity are supplied at a lower price. मीन्स जब ज़्यादा प्राइस होती है, मोर प्राइस होती है, तो सप्लायर क्या करता है, ज़्यादा कमोडिटी का सप्लाई करता है, और लेस अगर मतलब प्राइस अगर कम है, लोअर प्राइस है, तो लोअर प्राइस में वो लेस क्वांटिटी का सप्लाइड करता है. देर आर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. जो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई है, इसमें जो रिलेशन रहता है वो कैसे रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है. सो प्राइस ऑफ कमोडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सेकेंड पॉइंट इज अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. The types of technology used by the producer also affect on supply. See, if you think you want to supply more, you have to produce more. If you are producing more of commodity, means you have to upgraded technology. If your technology is upgraded technology, you will able to more goods and you will supply more goods. So technology plays a important in the supply of goods. मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अगर आपके जो कंपनी है इसमें अगर अपग्रेडेड है, तो आप मोर प्रोडक्शन उसका मोर प्रोडक्ट कमोडिटी का मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं. प्रोडक्शन अगर मोर है तो आप सप्लाई भी मोर कर सकते हैं. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सप्लाई भी आप ज़्यादा कर सकते हैं. तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. Third point is the infrastructural facility. Infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influence the production process as well as supply. Shortage of these facilities decrease a shortage of this facility decrease the supply and vice versa. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मीन्स कौन सी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा. ये जो फैसिलिटी अगर ज़्यादा इसमें अवेलेबल है तो प्रोडक्ट सप्लाई भी अच्छी तरह से होता है. अगर फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो सॉरी मशीन चलाने के लिए पावर नहीं है, तो ये सब फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका सप्लाई पे उसका इफेक्ट हो जाता है. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी तरह से अवेलेबल होना चाहिए सप्लाई के लिए. कोई भी कमोडिटी है उस कमोडिटी का सप्लाई अगर मार्केट में अच्छी तरह से होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ द फैक्टर increases, cost of production means cost that involve in production of particular commodity, so that would include everything: raw material, labor, and the price of raw material rise and price of labor increases. Cost of production increases. If the cost of production is rising or increasing or rising, I want not able to produce large amount of commodity, then only small amount of commodity will be produced. Hence a small or less amount of commodity will supplied, but the cost of input is less, then the cost of production will be also less. More quality will be quantity will be supplied, generated or produced, it could be supplied in the मार्केट. मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या कि उसमें हम जो इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन, पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में लेबर है, रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंस करते हैं, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई भी मतलब लेस क्वांटिटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई लेस होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो सप्लाई मोर हो जाता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट इज अ गवर्नमेंट policy. Government policy, there are certain government policy which help you the supply more, less or goods. Sometime government strategy very strict and stern, that time supply automatically reduce. Like you have you have very strict licensing policy or government imposing very much
policies on the producer. If the producer paying more money on the taxes, they are putting less or production, so supply remain also short. Government policy which include taxation policies, subsidies, etc. Industrial policy, these are the influence on the supply of the मार्केट. मतलब जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो सप्लाई कमोडिटी का अच्छी तरह से होता है. अगर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी जो है, टैक्सेशन पॉलिसी जो है, वो टैक्सेशन पॉलिसी अगर अच्छी तरह से नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट है, स्टंट है, तो जो कमोडिटी का सप्लायर है उसके ऊपर वो अगर ज़्यादा पे गवर्नमेंट को पॉलिसी, गवर्नमेंट जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट टैक्सेस में ज़्यादा अगर पैसा पे करता है तो वो जो उसका प्रोडक्शन है, सप्लाई, वो अच्छी तरह से नहीं करता, मतलब लेस वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन पे लेस खर्चा एक्सपेंस करता है. सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. 6 पॉइंट इज़ अ नेचर condition. The supply of agriculture product depend on the natural condition. For example, a good monsoon and favorable climatic condition will produce in a good harvest. So supply of agriculture product will increase and favorable climatic condition will leads to natural condition. For example, a good monsoon and so supply of agriculture product will increase and favorable climatic condition will leads on decrease in supply. मतलब जो नेचुरल कंडीशन है वो नेचुरल कंडीशन हर टाइम अच्छी तरह से अच्छी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कभी मानसून अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, कभी कम होता है. तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन डिपेंड ऑन मानसून. अगर मानसून अच्छा है तो सप्लाई प्रोडक्ट का अच्छी तरह से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अच्छी तरह से हो जाता है सप्लाई मार्केट में. अगर नहीं है तो प्रोडक्ट जो मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो सप्लाई उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है. कभी बहुत कम क्वांटिटी में उसका सप्लाई होता है. जैसे ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का 6 पॉइंट नेचुरल कंडीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज future expectations about price. If the price are expected to rise in the near future, the producer may withhold the stock. This will reduce the supply of reduce the supply and vice versa. Future expectation means when you know that the commodity supply in the market price will increase in future, then today you will less in supply. Today I know I will supply, I will get just 12 rupees today. Now tomorrow I will supply lot of, because 12 rupees. Now tomorrow I will supply lot of supply because I will get 15 rupees per. So today you supply less, you stop just to supply today because you know tomorrow price will go up and you will supply tomorrow price will हाई. मतलब जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रहता है जो सप्लायर है उसको, क्योंकि आज अगर 12 रुपीज़ पर केजी से अगर उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन कल टुमारो का एक्सपेक्टेशन, एजम्पशन उसका रहता है कि कल अगर प्राइस बढ़ेगा 12 रुपीज़ की जगह पे अगर 15 रुपीज़ हो जाता है, तो ये उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है. तो आज का जो सप्लाई वो क्या करेगा, वहाँ पे स्टॉप करेगा कल के लिए बहुत सारा सप्लाई करके. फ्यूचर का सोच के वो क्या करेगा, कल के लिए जो सप्लाई कमोडिटी का सप्लाई है वो सप्लाई कल के लिए करेगा ज़्यादा, मतलब लॉट ऑफ सप्लाई कल करेगा, मतलब टुमारो करेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा उससे गेट मोर मनी फ्रॉम टुमारो. सो दिस इज़ द 7 पॉइंट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. नेक्स्ट पॉइंट इज अदर फैक्टर. अदर फैक्टर में है, अदर फैक्टर्स मीन्स नेचर ऑफ मार्केट, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, export and import, industrial relation, availability of factor of production. If all factors are favorable, supply of commodity will be more and vice versa. ये जो factors है, nature conditions है, relative price, other factors है, export and import अच्छी तरह से हो रहा है, industry के relations अच्छे हैं, ये जो factor है, अगर availability उस factor production का, factor of production का availability अगर अच्छा है, तो ये सब फेवरेबल कंडीशंस में है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा. तो सप्लाई इसका अच्छी तरह से होता है. नेचर का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स ये भी फेवरेबल होना चाहिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अच्छी तरह से होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होने चाहिए. तो इंडस्ट्री से रिलेशन अच्छी तरह से होने चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका भी अवेलेबिलिटी अच्छी तरह से अगर अवेलेबल है तो जो सप्लाई है वो सप्लाई मार्केट में अच्छी तरह से हो जाता है. दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. तो फर्स्ट पॉइंट था प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, 6 नेचुरल कंडीशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, एंड लास्ट वन इज अ अदर फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज अ लॉ ऑफ सप्लाई. The law of supply is also introduction. The law of supply is also fundamental principle of economic theory, like law of demand. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1890. The law of explain the functional relationship between
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने लास्ट रिलेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी जो लास्ट लेसन था इन डिमांड एनालिसिस, इसमें हमने जो डिमांड का जो लॉ देखा था सेम वैसा ही सेम लॉ है लॉ ऑफ सप्लाई का। ये also important for in economics. The law of supply is also fundamental principle of economics theory, like law of demand. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने ये जो लॉ है लॉ ऑफ सप्लाई उसे उन्होंने उनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1893 में पब्लिश किया था। लॉ ऑफ एक्सप्लेन फंडामेंटल रिलेशनशिप, जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इन्होंने क्या है इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका ये इंट्रोडक्शन है। सेकेंड थिंग्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस द क्वांटिटी सप्लाइड। में जो हायर प्राइस रहती है तो जो कमोडिटी है उसका सप्लाई मोर होता है, अगर लोअर प्राइस में जो कमोडिटी है उसका क्वांटिटी सप्लाइड कैसे रहता है? लेस रहता है। बिकॉज इधर जो क्वांटिटी डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी इसमें जो रिलेशनशिप रहता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। डिमांड में हमने देखा जो प्राइस और कमोडिटी का जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इसमें जो रिलेशनशिप था वो इनवर्स रिलेशनशिप था। बट जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें जो क्वांटिटी एंड प्राइस इसमें जो सप्लाई उसका जो रिलेशनशिप वो कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि ज़्यादा प्राइस है, अगर मोर प्राइस है मोर सप्लाई, लेस प्राइस लेस सप्लाई। In the simple word, other factor remaining constant, a rise in price result in a rise in the quantity supplied and vice versa. There is a direct relationship between price and quantity supplied. मीन्स सिंपल वर्ड में बोला है कि अगर अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, जैसे इनकम है, हैबिट्स है, ये जो थिंग्स इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ओनली चेंजेस इन प्राइस में चेंजेस होने के बाद जो सप्लाई में चेंजेस आता है, मतलब कम है, अगर प्राइस लो है तो सप्लाई लो होता है, हायर प्राइस में हाई सप्लाई होता है, मतलब ज़्यादा सप्लाई होता है। रिलेशनशिप इसमें क्वांटिटी और सप्लाई में। अभी इसे सिम्बॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करें? तो एक्स मीन्स यहाँ पे दिया है, एस मीन्स सप्लाई, एक्स मीन्स कमोडिटी, एफ मीन्स फंक्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटी, एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स डिपेंड ऑन सप्लाई डिपेंड ऑन प्राइस। तो एक्स मीन्स कमोडिटी, कोई भी एक्स कमोडिटी है उसका फंक्शनल रिलेशनशिप इज इक्वल टू एफ पी एक्स, मतलब सप्लाई डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। एस इज अ सप्लाई, एक्स इज अ कमोडिटी, एफ मीन्स फंक्शन, पी मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी। इस एफ जो है, एफ का मीनिंग रहता है सप्लाई इज अ डिपेंड, एस एक्स सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मतलब जो प्राइस है वो प्राइस सप्लाई एक्स कमोडिटी का किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस ऑफ एक्स, जो कमोडिटी एक्स है उस कमोडिटी एक्स के ऊपर डिपेंड है। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। Next point is assumptions of the law of supply. Assumptions means certain things you assume that okay, there is a law of supply work. This is the assumed to be there, or there certain things to be assumed and taken to be granted. This is the their particular aspect the law of the supply work में ऐसे कुछ assumptions है, इसमें ये law of work करता है। देयर इज़ अ लॉ ऑफ सप्लाई वर्क, दिस इज़ द एज्यूम दैट टू बी देयर, मतलब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें वो क्या होता है, यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि ऐसे जो केसेस है इसमें लॉ ऑफ सप्लाई वहाँ पे वर्क करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। If the cost of production increase, your supply will go down. Then what about prices? If the cost of production increase, price will be increased. People will not buy your product. So we will say cost of production remains stable. It is only price that affecting supply. Constant production means if the cost of production increase, your supply will go down. Then what about your prices? मतलब constant production, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन का कांस्टेंट है, अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्राइजेस का क्या होगा? तो प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्राइस विल इंक्रीज, पीपल विल नॉट बाय। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्राइस विल इंक्रीज। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस विल बी इंक्रीज, तो पीपल है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करेगा। सो वी विल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, इट इज़ ओनली प्राइस दैट अफेक्टिंग सप्लाई। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, इट इज़ ओनली प्राइस दैट अफेक्टिंग द सप्लाई। मतलब जो यहाँ पे कौन सा फैक्टर सिर्फ मतलब
कंसिडर किया जाता है कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने के बाद ही सप्लाई में चेंजेस आता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें किचन चेंजेस नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट इज अ कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. No change in technique means a technology is not upgraded. If you upgrade the technology, supply will change. So supply will not change to upgraded technology. It will change because of price. So technology remains same. It is an assumption. जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स में चेंजेस नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. टेक्निक में चेंज ऑलवेज होता रहता है. टेक्निक में चेंज होने के बाद आपका जो सेम प्राइस है उस सेम प्राइस में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सप्लाई है वो कर सकते हैं. Next point is a no change in weather condition. If the weather is a favorable and suppose you are producing sweater and there is a lot of winter, in high winter there is a time supply will be very good whatever price it is. But no, we say weather condition are same, only prices affecting the supply. Basically assumption means leading price or other factor is a constant. Sometimes price does not play an important role, but on any other factor plays an important role, but they say no, other factor play important role, only price may be important role in changing the supply. मतलब यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि ओनली चेंज जो वेदर कंडीशन है वो सेम है, बाकी के फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो भी कुछ फर्क सप्लाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो जो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, वेदर में कुछ चेंजेस नहीं है ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है. वेदर कंडीशन में चेंज होने के बाद भी सप्लाई में चेंजेस एक्चुअली आ जाता है, ये एज्यूम किया है कि वेदर कंडीशन में चेंजेस नहीं होता है, ओनली चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट पॉइंट इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द पॉलिसीज, व्हाट विल हैपन? your supply will go down. Why? Because major portion of the money paying on taxes and very less contribution towards production. It nothing like that. The production will affected and supply affected only because of price, not because of government policy. Because government policy does not change, they remain constant, and that is the assumptions. इसमें दिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एक्चुअली मंथ में हर ईयर में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एज्यूम किया है कि चेंजेस कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. ऐसा एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसी हर साल में चेंजेस होते रहते, तो ये एज्यूम किया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होते, ओनली चेंजेस इन प्राइस के चेंज होने के बाद ही सप्लाई में चेंजेस होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. See, sometimes the not only the price play an important role, but the transport cost is also play an important role. If the transport cost increasing, your supply also will be less, because your supply more, you will be pay more through the transport cost. So they say no, transport cost is fixed, only price is affecting the supply of the commodity. मतलब यहाँ पे एज्यूम किया है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं होता है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज होने के बाद assume that there is no change in condition, transport facility and transport cost. For example, better transport facility increase the same price. मतलब transport facility changes नहीं होता है, सिर्फ changes in price. ये assume किया है कि transport cost में कुछ changes नहीं होता है. Next point is the price of other goods remain constant. What do you mean by the term substitutes or other goods remain constant? These are an assumption. Suppose you will say law of supply is a work when the price increases, supply also increase, but what happen if the substitute price also be fall down? If the substitute price fall down, what will happen? If your supply, even the prices are increasing, supply will go down because they are buy from other producer. मतलब एक substitute goods है, अगर उसका अगर price बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, दूसरा substitute goods है. हाँ, suppose you are producing coke, their price is 12 rupees and other is a Coca-Cola, their price is 25. Your price is 25 and other product prices are 22. Then people buy that product, they have लोअर प्राइस. मतलब 22 अगर जिसका प्राइस है वो लेना कंज्यूमर क्या करेगा, प्रेफर करेगा. सो प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे एज्यूम किया है कि अदर गुड्स है उसका कांस्टेंट क्या है, जो उसका कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है. नेक्स्ट इज अ नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. द लॉ ऑफ ऑल्सो एज्यूम दैट द सेलर इज डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे ऐसे एज्यूम किया जाता है कि जो फ्यूचर प्राइस है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मीन्स यू नो दैट द टुमारो प्राइस विल बी मोर, टुडे यू आर सप्लाइंग लेस, यू विल सप्लाई टुमारो एट अ हायर प्राइस. So there is a no future expectation, whatever price. So today your price increasing, supply increasing, so there is a no future price expectation or speculations
इन द सप्लाई। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर आज का प्राइस राइस का 20 रुपीज़ पर केजी है, अगर टुमारो वो 25 रुपीज़ पर केजी होने वाला है, तो वो क्या करेगा, आज का जो सप्लाई है और कम करेगा, क्योंकि ही गेट मोर प्राइस फ्रॉम टुमारो। सी these are the assumptions of the law of supply. First was constant cost of production, second constant technique of production, third no changes in condition, no change in government policy, no change in transport cost, price of other goods remain constant, and last one is a no future expectation. These are the assumptions of the law of supply. Next point we will discuss in another video. Thank you.